दुबरी और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसकी सजेशन हमें दी है पार्थ ने। और सबसे पहले हम सॉरी बोलना चाहते हैं कि हम लोग काफी लेट हो गए वीडियो देखने में। बहुत सारी वीडियोस होती हैं जो सजेशंस में रहती हैं और पेंडिंग हो जाती हैं, तो इसलिए थोड़ा टाइम माफी क्षमा चाहते हैं। तो जो वीडियो देखने जा रहे हैं टाइटल है GVKS VN ऑफ द नवी मुंबई एयरपोर्ट। वेल देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो का इस चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा हमारे ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। As the winds of transformation blow across the skies of Mumbai, touching minds and hearts, inspiring ideas and arts, we open our wings to ride these winds of change. India today is one of the fastest growing economies in the world. Maharashtra, with its vibrant culture and industrial prowess, has always been the epicenter for this growth. Various infrastructure initiatives are making the Mumbai metropolitan region future ready. Airports drive economic growth and transform the region, and GVK has been actively participating in India's aviation sector, having created the iconic T2 at Mumbai and conceived the Terminal 2 at Bengaluru Airport. The Union Government and Government of Maharashtra have envisioned the greenfield Navi Mumbai International Airport through CIDCO, which has been developing Navi Mumbai. GVK Mumbai International Airport Limited, in a public-private partnership with CIDCO, has now embraced the challenge of developing the Navi Mumbai International Airport at a location in the center of Mumbai metropolitan region with challenging site conditions to create a hub for future growth. The iconic terminal design of Navi Mumbai International Airport takes its inspiration from our national flower, the lotus, which symbolizes purity and elegance. The futuristic design of NMIA uniquely blends modernity with Indian ethos, art and culture in a poetic and fluid architectural language, symbolizing vitality and creativity of a rising India. Designed by globally acclaimed architectural firm Zaha Hadid, the Central Terminal Complex is the heart of the Navi Mumbai International Airport, a cluster of 3 interconnected multi-level terminals planned around a landscaped central forecourt with a multimodal transportation hub. The master plan of the Navi Mumbai International Airport will ultimately serve 90 million passengers per annum. It is planned with dual entrances from west as well as from the east. NMIA is planned to be implemented in 4 phases with 2 parallel runways capable of simultaneous operations. With high-speed expressway, suburban rail, metro and water transport connectivity, the Central Terminal Complex is connected by 9+9 lanes planned along a landscaped main airport access road. The western and northern part of the airport is planned for passenger-related facilities and supporting airport users, while the eastern part of NMIA is planned for cargo, MRO, general aviation, thus segregating vehicular traffic between the 2 entrances. The passenger terminal welcomes travelers with flowing forms of its grand entrance, an exciting start to their journey. It is designed with simplicity in mind and organized on 2 floors with very few level changes. This creates a compact terminal with minimized walking distances through intuitive wayfinding. The piers of departure gates are highly efficient and designed without the need for vertical transport systems. As one departs through the terminal, the lotus petals slowly reveal themselves and capture the discerning travelers in awe. The elegance of the building evokes the culture of India and blends it with futuristic features, establishing a new standard in terminal design.
and uplifting architecture accompanies passengers through a fluid sequence of spaces bathed in sunlight. Incoming travelers are welcome to an equally simple and intuitive arrivals experience and are processed in a pleasant and stress-free environment. Passengers are smoothly guided from their gate to the terminal forecourt. On arrival, they begin their journey into the world with a thrilling and unforgettable experience. And those visiting receive a wonderful welcome to the magical city of Navi Mumbai. Serving both domestic and international traffic and equipped with next-gen technology, the Navi Mumbai International Airport shall make travel an exciting experience and open new business opportunities. Navi Mumbai International Airport, connecting Mumbai metropolitan region to the world. Navi Mumbai International Airport. मुंबई का नया एयरपोर्ट तो बन रहा है, लेकिन मैं अगर पुराने एयरपोर्ट की बात करूं, क्योंकि हमने रिसेंटली मुंबई में जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के जो एयरपोर्ट इस्तेमाल हो रहे हैं वो देखे हैं, मुझे तो वो भी दोनों बहुत खूबसूरत लगे हैं। वेल, हम लोगों ने डिफरेंट ब्लॉग्स में भी रिसेंटली हम लोगों ने ब्लॉग्स देखे हैं जहां से जो एक पाकिस्तानी इंडिया गई, यानी कि दुबई से वो आए, लेकिन ये कि उस टाइम पर भी उन्होंने थोड़ी सी झलक एक दिखाई थी। उससे पहले भी हम लोग वीडियो देख चुके थे और वो भी हमें इतना खूबसूरत लगा था जिस तरीके से वो बना हुआ था। अच्छा, एक चीज मुझे बड़ी मुझे लगता है कि दोनों में एक मैं कहूंगी कि कॉमन है, और वो ये कि जैसे ही आपकी एक एंट्रेंस होती है, क्योंकि जो नवी मुंबई वाला एयरपोर्ट है उसको उसका जो आर्किटेक्ट है वो लोटस जो फ्लावर है उस पे बेस है, यानी कि उस तरीके का बना हुआ, तो एक बहुत आपको बड़ी सी लुक आती है। लेकिन जो मुंबई का हम लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अगर बात करें मौजम, तो उसमें भी आप देखोगे वो बड़े बड़े ऐसे पिलर्स बने हुए हैं, तो आप जैसे ही एंटर होते तो एक आपको एक ऐसे वाली लुक आती है कि बहुत कुछ बड़ी चीज हम लोग देख रहे हैं। इसमें तो कोई शक नहीं कि वाकई एक फिलहाल अभी हमने जो उसका 3D मॉडल देखा उसे देख के भी यही लगा बहुत जायंट जो है वो यानी कि एक प्लेस बनाई जा रही है। लेकिन नो डाउट अगर एयरपोर्ट की बात की जाए, जिस तरह उसके साथ कनेक्टिविटी की जा रही है, पुराने एयरपोर्ट के साथ भी प्रॉपर एक कनेक्टिविटी थी, लेकिन जो नए एयरपोर्ट के साथ कनेक्टिविटी की जा रही है, जैसे मेट्रो के साथ जोड़ा जा रहा है, उसे जो है 9 लेन रोड के साथ जोड़ा जा रहा है, तो ये जो है काफी ज्यादा आपको फैसिलिटेट कर देती चीजें। अब मेरे जैसा बंदा जो है वो अगर एयरपोर्ट जाना चाहे कभी, तो वो कहेगा यार मैंने क्यों सारों को साथ लेकर जाना है, मैंने क्यों वैगन करानी है, मैं उससे बेहतर है कि मैं जाता हूँ मेट्रो पे 40 पे देता हूँ, मुझे एयरपोर्ट उतार देगी। वैसे ये चाहे जितना मर्जी इतना करे, घर वालों ने कोई नहीं सुनी, हमारे घर में यही है, अगर कोई बाहर जाएगा सारे छोड़ने भी सारे लेने भी नहीं। वैसे मैं एक जो है ना वो बहुत इमेजिनरी सिचुएशन बता रहा हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये पॉसिबल नहीं हो पाता, बट ये कि वाकई में जो एक प्लान है, ऑब्वियसली जैसे जैसे चीजें आगे जाती हैं आप और ज्यादा अपडेटेड रहते हैं, चीजें आप और डिफरेंट तरीकों से करते हैं। पहले जो चीजें बना ली हुई हैं आप सोचते हैं कि उससे बेहतर वर्जन हम लोग लेकर आए। अच्छा, ये एक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का एक प्रोजेक्ट है। मैं यहाँ पर ये जानना चाहूंगी क्योंकि उसमें जो हम लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो देखा है उसमें भी प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है, ठीक है, इट मींस कि वो भी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पर होगा, भी हो सकता ये जरूर हम लोगों को बताइएगा। और दूसरा ये कि हम लोगों ने बहुत कोशिश की है कि हम लोग देखें कि जो पहले दो एयरपोर्ट्स हैं उनकी लोकेशन क्या है, तो हम लोग को इतना ज्यादा समझ नहीं आ पाया, बहुत ढूंढने की कोशिश की, बस एक जगह का पता चला, सेंटा क्रूज आई थिंक, वो रेलवे स्टेशन के पास है। और नए अगर हम लोग एयरपोर्ट की बात करें तो वाकई में कि एक ही टाइम पर जो दोनों
रनवे हैं वो भी ऑपरेट किए जा सकते हैं। फिर उसके अलावा जो कार्गो वगैरह है उसके लिए एक अलहदा से जगह बनाई गई है। तो मुझे लगता है कि ये काफी चीजें आपको ना आपका टाइम बचत के लिए, फिर लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है इन चीजों से। मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूंगा कि एयरपोर्ट का जो 3D स्ट्रक्चर आप देखें ना, तो उसमें जो 3 बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं जो कि पैसेंजर्स के लिए हैं, वो एक बहुत यूनिक किस्म का डिजाइन है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं जहाज जो वहां पे विमान उतरेंगे, तो एक टाइम पे काफी ज्यादा जो विमान है उन्हें ऑपरेट किया जा सकेगा। जैसे हम जो एक 3D मॉडल देखा उसमें जो गेट्स बहुत ज्यादा दिए गए हैं, एक यानी कि लोगों को जैसे हम आम एयरपोर्ट पे देखते हैं ना, हमारे यहाँ पर अगर बात करें तो गेट से काफी दूर ही लैंड कर दिया जाता है, या बहुत कम होता है कि गेट के ऊपर जो है वो आए। तो ये चीज जो है काफी ज्यादा इस एयरपोर्ट को इम्पोर्टेंट बनाएगी। और साल में लगभग यहाँ पर जो है 90 मिलियन लोग जो है वो आया करेंगे। मतलब वाकई में बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल। और इसके अलावा सबसे अच्छी चीज ये भी है, मैं कहूंगी कि जिस तरीके से पहले हम लोग देखते हैं कि जहां तक हम लोगों ने पढ़ा है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट और डोमेस्टिक फ्लाइट्स का एयरपोर्ट डिफरेंट है, लेकिन ये एक ऐसा एयरपोर्ट बन रहा है जहां पर दोनों सुविधाएं आपको मिलेंगी, यानी कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी होंगी और डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी होंगी। और मुझे लगता है कि इस लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम एक ऐसे जगह का इस्तेमाल करते हैं जहां पर हमें हर चीज के लिए डिफरेंट चीजें बनानी पड़े, उसके बजाय आपको एक जगह पर सारी सहूलत मिल जाए तो वो ज्यादा मिल जाता है। बिल्कुल। और उसके अलावा एक और चीज जो इस एयरपोर्ट में बहुत अच्छी मुझे लगी, ग्रीन फील्ड जो है इसे बनाया जा रहा है, यानी कि माहौल दोस्त जो है इसे बनाया जा रहा है। उसके अलावा अगर इसकी कॉस्ट की बात करें तो इस पे 160 बिलियन इंडियन रुपीस जो है इसकी कुल लागत है, जो कि 2.2 बिलियन US डॉलर्स बनता है। और इसके अलावा ये बाय 2023 ऐसा माना जा रहा है कि इसको फुली ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। वेल मैं कहूंगी कि वाकई में अच्छे एयरपोर्ट्स होने चाहिए। आप जब ट्रैवल करते हो ना, तो जब अच्छा एयरपोर्ट देखते हो तो आपकी एक्साइटमेंट ना ट्रैवलिंग की और ज्यादा बढ़ जाती है। मैं तो कहता हूँ कि आपकी एक्साइटमेंट जो है ना वो उछाल मारती है अच्छे एयरपोर्ट देख के। इसके अलावा जो बीच में आपको ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि डिफरेंट लाउंज हैं, फिर उसके अलावा मतलब अगर आपको कुछ खाना पीना है, आपको वहां पर एक फूड कोर्ट भी नजर आ जाता है। शॉपिंग करनी हो, आपको शॉपिंग मॉल की भी सहूलत इसके अंदर है। हालांकि एयरपोर्ट्स में शॉपिंग काफी महंगी होती है, तो वो तो जो करना चाहता है वो कर सकता है, करने वाले करते हैं। हाँ, करने वाले करते हैं। लेकिन ये कि एक सुविधा होनी चाहिए। मुझे लगता है कि एयरपोर्ट वाकई में इस तरह का होना चाहिए कि जब कोई बाहर से लोग आए ना, तो वो उस चीज को एडमायर करें। क्योंकि जब हम कहीं बाहर से यहाँ पर आते हैं ना, स्पेशली मैं मतलब अपने मुल्क की बात कर रही हूँ, तो हम लोगों को लगता है कि पता नहीं हम कहाँ आ गए। बस यार नहीं, मतलब मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही हूँ कि यहाँ पर भी एक नया एयरपोर्ट बना, लेकिन एक वो जो होता है ना कि मतलब जिस तरीके से अगर हम लोग पहले वाला मुंबई का एयरपोर्ट भी देखें और अभी का भी देखें, तो उसमें अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को उसका एक एसेंस दिया गया। तो मुझे लगता है कि ये चीजें आपको पोर्ट्रे करनी चाहिए इन फॉर्म ऑफ डिफरेंट, आप कह सकते हो बिल्डिंग्स हो सकती हैं या कुछ भी हो सकता है। वेल गाइस, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। ओवरऑल काफी अच्छा प्रोजेक्ट है। आपका क्या सोचना है इसके बारे में जरूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ में जाओ हमारे वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, videos share. and keep us in your prayers. Goodbye.